پاکستان میں امن کا لگ گیا چھکا، برطانیہ نے بھی محفوظ ممالک کی فہرست میں رکھا ہے۔ شاہی جوڑے نے بہتر امن و امان پر ہی دورہ کیا، برٹش ایئر ویز کا آپریشن بھی شروع ہوا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے تبدیلی کا کریڈٹ پوری قوم اور مسلح افواج کو جاتا ہے۔ امید ہے سعودی عرب، ترکی اور ملیشیا بھی سیاحت کے فروغ میں مدد کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور برطانیہ میں رابطے مضبوط ہوں گے۔ پارلیمانی سیکریٹری ملائکہ بخاری اور پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا کی لندن میں پریس کانفرنس، عالمی برادری کی خاموشی پر اظہار تشویش۔ 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر برٹش کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کے احتجاج کی تیاریاں مکمل۔ بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرے میں برطانیہ بھر سے پاکستانی اور کشمیری شرکت کریں گے۔ مظاہرہ رکوانے کے لیے بھارتی لابی سرگرم۔ گلیوں کے تبسم میں جو مسکراہٹ ہے اس کے اندر سرکار کے جلوے موجود ہیں۔ اس پھول کے ریشے کیا کہنے، تیرے عشق کے دھارے پھوٹے ہیں۔ یہ کلیاں جو پھول بنی ہیں دل کے چھالے پھوٹے ہیں۔ یوم جمہوریہ کے مظاہرے میں برطانیہ میں مقیم پاکستانی، کشمیری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھرپور شرکت کریں گی۔ مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی کا نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب، فرمایا مودی موجودہ دور کا ہٹلر ہے جسے تاریخ ہمیشہ ظالم حکمران کے طور پر یاد رکھے گی۔ نون لیگی رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا رانا ثناء اللہ کے حوالے سے عمران خان نے تضحیک آمیز گفتگو کی، انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ نواز شریف اگلے ہفتے اسپتال داخل ہو جائیں گے، ان کے دل کے بند شریانوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ سرجن کی دستیابی کے بعد ہی اسپتال میں داخلے کا دن بتایا جائے گا۔ حسین نواز کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ والس ہال میں آزاد کشمیر کے فلاحی اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب، رکن برطانوی پارلیمنٹ راجہ محمد یاسین کی خصوصی شرکت۔ آزاد کشمیر کا یہ ادارہ شوکت خانم اسپتال کے ساتھ مل کر طبی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ شرکاء نے دل کھول کر عطیات دیے۔ بریگزٹ کے بعد برطانوی حکومت کا اگلا اقدام، اکنامک مانیٹرنگ کے لیے آسٹریلوی طرز کا پوائنٹ سسٹم متعارف کرانے کی تیاریاں۔ مانچسٹر میں ماہر قانون نزاکت خان کی 92 نیوز سے بریگزٹ کے حوالے سے خصوصی گفتگو۔ یونیورسٹی کالج لندن اور لندن اسکول آف اکنامکس میں پاکستانی طلباء کی جانب سے محفل سما کا اہتمام۔ معروف قوال حاجی امیر خان نے اپنے فن کا جادو جگا کر حاضرین محفل کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ دیگر ممالک کے طلباء بھی اش اش کر اٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ہیڈ لائنز اپنے جانی ناظرین، آغاز میں آپ کو بتائیں کہ مسلح افواج اور عوام کی لازوال قربانیوں کی بدولت ملک میں امن کا موسم لوٹ آیا ہے۔ پاکستان پرامن بھی ہے اور محفوظ بھی، اس کا اعتراف اب دنیا کھلے الفاظ میں کر رہی ہے۔ برطانیہ کی جانب سے اٹھائے جانے والے بڑے اقدام پر بھی بات ہوگی اسی بلیٹن میں، مگر پہلے ذکر پاکستانی کرکٹ کا جو پھر سے جینے لگی ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں کھیل کے میدان آباد اور انٹرنیشنل کرکٹ مکمل طور پر بحال ہو چکی ہے۔ پارلیمانی سیکریٹری ملائکہ بخاری اور پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا نے ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی دہشت گردی کے خلاف اقوام عالم کا ضمیر جگانے کی کوشش کی ہے۔ لندن میں پریس کانفرنس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی تنظیم بھارت کے انسانیت سوز اقدامات کا نوٹس لے۔ تفصیلات دیکھیے بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔
पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया और पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर मलाइका बुखारी ने कहा है कि कश्मीर में मोदी हुकूमत के इक़दामात आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। मलाइका बुखारी का कहना था भारतीय मज़ालिम पर तशवीश बढ़ रही है मगर आलमी बरादरी की खामोशी तशवीशनाक है। हम कश्मीर के इशू को हर लेवल के ऊपर रेस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ है उसकी वायलेशंस है, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जैसे यूएन चार्टर है, जैसे इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, जिसके अंदर टॉर्चर के ऊपर एक तफसीली एक एलिमेंट डिटेल है, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर बात हुई है, जिसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बात हुई। इन सब इश्यूज़ को हम रेस करेंगे बिकॉज यही वो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं कश्मीरियों की, जिनको मोदी हुकूमत तसलसल से वायलेट कर रही है। नफीस ज़करिया ने हाज़रीन को भारतीय फोर्सेस की तरफ से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के बारे में आगाह किया और कहा भारत जम्मू और कश्मीर के इलाकों को अपने कब्जे में कर रहा है। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में हकाइक जानने के लिए गैर जानबदार मिशन भेजने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आई है कि कश्मीर को बहैसियत इशू के डिस्कस किया गया है, विच मीन्स के इसकी बाकायदा रिकग्निशन है कि ये एक इशू है जिससे ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस बल्कि एक सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट इस वायलेशन के अंदर और फिर सिक्योरिटी का जो एंगल है। मलाइका बुखारी ने कहा गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीरियों के साथ होने वाला जुल्म भारत का दाखिली मामला नहीं है बल्कि ये बैनुल अक़वामी कानून के साथ साथ भारतीय आइन की भी खिलाफ वर्जी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों को हर फोरम पर उठाया जाएगा। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। 26 जनवरी को हिंदुस्तान के यौम जमहूरिया के मौका पर ब्रिटिश कश्मीर, लंदन और यूरोप में एहतजाज करने जा रहे हैं, जिसे रुकवाने के लिए भारतीय लॉबी सरगर्म हो गई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी से, जो इस वक्त मुजाहरे के मुंतज़मीन और तहरीक कश्मीर बरतानिया और यूरोप के सदूर के साथ हैं। आबिद काज़मी, क्या कहना है कश्मीरी रहनुमाओं का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बर्मिंघम में मौजूद हूँ और 26 को जो ब्रिटिश कश्मीरी लंदन में मुजाहरा करने जा रहे हैं उस सिलसिले में इंडियन लॉबी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और उस मुजाहरे को रुकवाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त तारीख कश्मीर बरतानिया और यूरोप के सदूर मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये 26 जनवरी को क्या ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी वजह से इंडियन लॉबी एक्टिव है और इंडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। जी फ़हीम कियानी साहब, आप ये बताएंगे क्या ऐसा करने जा रहे हैं 26 को कि इंडियन लॉबी इतनी एक्टिव है और रुकवाने की कोशिश कर रही है मुजाहरा? इस दिन इंडिया जमहूरी दिन मनाता है और हम उस दिन इसको यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। इंडियन हाई कमिश्नर ने होम मिनिस्टर से मुलाकात की और फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने अपने तमाम चैनल्स को वो इस्तेमाल करके वो चाहते हैं कि इस मुजाहरे के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन हमने यूके अथॉरिटीज़ को बताया है कि ये जो सफारतखाने हैं भारत के, ये हिंदुत्व आइडियालॉजी के सिंबल हैं और जो हमारी स्ट्रगल है, जो लेजिटिमेट स्ट्रगल है, इस पे यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन पास हुए और ये हमारा डेमोक्रेटिकली और मॉरल राइट है कि हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के खिलाफ अपने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के हवाले से हम आवाज़ बुलंद करें और हज़ारों कश्मीरी और पाकिस्तानी इंसानियत से मोहब्बत रखने वाले लोग भारत का ज़माना चेहरा इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर इकट्ठे होकर उसको एक्सपोज करेंगे। जनाब गालिब साहब, आप ये बताएं कि आप यूरोप के सदर हैं और यूरोप में भी मुजाहरे हो रहे हैं 26? जी, यूरोप में भी तकरीबन तमाम ममालिक के अंदर मुजाहरे भी हो रहे हैं और एहतजाज और रैलीज मुनक्किद की जा रही हैं और इस मौका पर हिंदुस्तान का जो नाम नहाद जमहूरियत है उसका जो गनावना चेहरा है उसको बेनकाब किया जाएगा और ये काम हम हर साल करते हैं और गुज़श्ता 70 साल से कर रहे हैं। और हिंदुस्तान को इसकी परेशानी ये होती है कि हिंदुस्तान दुनिया के सामने झूठ बोलता रहता है कि मैं बड़ा जमहूरी मुल्क हूँ और दुनिया को अब पता चला है कि हिंदुस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है। मोदी जो है वो इंसानियत का कातिल है, उसके हाथों कोई भी लोग वहाँ हिंदुस्तान के अंदर या मकबूजा कश्मीर के अंदर लोग महफूज नहीं हैं और इस वक्त पूरे दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक फ़ज़ा बनी हुई है और हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर के तमाम रास्ते बंद कर रखे हैं और वहाँ कर्फ्यू नाफज है और किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जाने की इजाज़त नहीं है, मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है। ये असल बौखलाहट है हिंदुस्तान की। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि हम जो कैंपेन डिजिटल कैंपेन चला रहे हैं और इंडिया को बेनकाब करने के लिए हम तमाम ब्रिटिश जो कश्मीरी बरतानिया में है, यूरोप में है, वो तमाम कोशिश करेंगे 26 को इंडिया को बेनकाब किया जाए दुनिया के सामने, जिसकी वजह से वो बौखलाहट का शिकार हैं। जी
मुफक्कर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने दारुल उलूम कादरिया जलानिया वाल्थमस्टोव लंदन में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि बरतानिया में मुकीम कश्मीरी, पाकिस्तानी और इंसानी हुकूक की तंजीमें भारतीय यौम जमहूरिया पर होने वाले मुजाहिरों में भरपूर शिरकत करें। तफसीलात देखिए वसीम काज़मी की रिपोर्ट में। मशरकी लंदन के इलाके वाल्थमस्टोव में दारुल उलूम कादरिया जिलानिया में पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब में मुस्लिम उम्मा के इत्तफाक पर खसूसी बयान सुनाया। उनका कहना था मुसलमान आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होकर आपस में इत्तफाक को यकीनी बना सकते हैं। कलियों के तबस्सुम में जो मुस्कुराहट है उसके अंदर सरकार के जलवे मौजूद हैं। इस फूल के रेशे क्या कहने, तेरे इश्क के धारे फूटे हैं। ये कलियां जो फूल बनी हैं दिल के छाले फूटे हैं। उन्होंने कहा मोदी सरकार ने वादी में जुल्म की इंतहा कर दी है और वो मौजूदा दौर का हिटलर है जिसको तारीख हमेशा जालिम और इंतहा पसंद हुक्मरान लिखेगी। मुसलमानों ने की हैसियत से कश्मीर के साथ हमारे बॉर्डर मिले हुए हैं, इसलिए कश्मीर पर कोई आफत आए उसमें शेयर करना हमारा दीनी काम है। इस मौका पर पीर सैयद मजहर हुसैन शाह ने अंबिया कराम और औलिया कामलीन की सीरत पर खसूसी रोशनी डाली और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशाल राह बनाने की तलकीन की। इस तरह के बारीकी के डोरे डाले और इस कदर नज़ाकत उसमें पाई जाए, नज़ाकत के साथ साथ उसके अंदर खुशनुमाई हो, खुशनुमाई के साथ साथ उसके अंदर फूल, उसमें खुशबू हो। ये सब चीज़ें अपने रंगो बू में सरकार की जुल्म ताबदार की मोहताज है और सरकार के तवस्सुल के बगैर कोई चीज़ न एग्जिस्ट करती है, न मौजूद होती है, न बाकी रह सकती है। नमाज जुमा के बाद पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने उम्मत मुस्लिमा के लिए खसूसी दुआ भी की। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि राना सनाउल्लाह के हवाले से इमरान खान ने तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की, उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। शहबाज शरीफ ने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। राना सनाउल्लाह साहब के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की, वो इंतहाई तज़हीक आमेज़ थी और इंतहाई गिरी हुई बातें की। और राना सनाउल्लाह एक ऑनरेबल पाकिस्तानी है, उनके बारे में जो गुफ्तगू की वो ज़ुबान पर नहीं लाई जा सकती। इमरान खान साहब को होश के नाखून लेने चाहिए और ऐसी गुफ्तगू करने से परहेज़ करना चाहिए। यू टर्न में बिलीव नहीं करते राना सनाउल्लाह, वो इमरान खान की तरह गलत बयान नहीं करते। और इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने जो उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए, वो मैं नहीं चाहता कि कोई और इमरान खान साहब को इस तरह के अल्फाज से उनको पुकार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने कहा है कि उनके वालिद अगले हफ्ते अस्पताल दाखिल हो जाएंगे, जहां उनके दिल की बंद शरियानियों का जायजा लिया जाएगा। सर्जन की दस्तयाबी के बाद ही अस्पताल में दाखिले का दिन बताया जाएगा। लंदन में मीडिया से बातचीत करते हुए हुसैन नवाज का कहना था कि अस्पताल में एंजियोग्राफी के लिए दिल की बंद शरियानों का जायजा लिया जाएगा। एंजियोग्राम टेस्ट में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात का गुर्दों पर असर पड़ता है, इसलिए अद्वियात की मिकदार को कम रखा जाएगा। हुसैन नवाज का कहना था कि सर्जन की दस्तयाबी के बाद ही अस्पताल में दाखिले के दिन का बता सकेंगे। उम्मीद है अगले हफ्ते नवाज शरीफ अस्पताल में दाखिल हो जाएंगे, जहां उनके बाईपास के इम्कानात को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। चीन में खतरनाक कोरोना वायरस वबाई सूरत-ए-हाल इख्तियार कर चुका है। ये वायरस कैसे फैलता है और इसकी क्या इलामात हैं, ये जानने के लिए 92 न्यूज़ के रिसर्च डेस्क की ये रिपोर्ट देखिए। खतरनाक वायरस के बारे में मालूमात अभी इब्तदाई मराहिल में हैं, ताहम साइंसदानों का मानना है कि इसकी शुरुआत सांपों से हुई थी, जिन्हें वुहान में जानवरों की मंडी में लाया गया था। ताहम ये वायरस चमगादड़, चूहों और दीगर जानवरों के जरिए भी फैल सकता है। कोरोना वायरस नाक और मुंह के जरिए जिस्म में दाखिल होता है, जहां वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी सांस लेने के निजाम में मौजूद एक खुलिये से जुड़ता है और फिर दीगर खुलियों पर असरअंदाज होना शुरू होता है। ये खांसी, छींक, हाथ लगाने और एक ही बर्तन में खाना खाने से फैलता है। कोरोना वायरस की अलामत 2 से 14 दिनों के दरमियान सामने आने लगती हैं, जिनमें नाक का बहना, खांसी, गले में दर्द और तेज बुखार शामिल हैं। वायरस से निमोनिया और फेफड़ों में सोजन पैदा होती है, जिसके बायस सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मरीज की मुकम्मल सेहतियाबी का दारोमदार कुव्वत मदाफियत पर है, जबकि जो लोग जान बहक हुए वो या तो बुजुर्ग थे या फिर उन्हें पहले से ही बीमारियां लाहक थीं। कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज ढूंढा गया है और न ही इसकी कोई वैक्सीन मौजूद है। इस पर एंटीबायोटिक्स का भी असर नहीं होता, जबकि एंटीवायरल अद्वियात बनाने से कबल वायरस को समझना जरूरी है, जिसमें कई साल लग सकते हैं।
برطانوی حکومت نے بریگزٹ کا عمل مکمل ہونے کے بعد اکنامک مائیگرنٹ کے لیے آسٹریلوی طرز کا پوائنٹ سسٹم متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے نمائندے راجہ واجد اس وقت قانون دان نزاکت خان کے ہمراہ ہیں۔ مزید تفصیلات انہی سے جانتے ہیں۔ جی واجد، کیا کہنا ہے نزاکت خان کا؟ جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ ماہر قانون دان نزاکت خان موجود ہیں، جن کو دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ امیگریشن پر بھی کافی عبور حاصل ہے، اور اب جب کہ بریگزٹ کنفرم ہو چکی ہے اور اب گورنمنٹ برطانیہ جو ہے وہ اکنامک مائیگرنٹ پروگرام لے کر آنا چاہ رہی ہے، اور آج ہم ان سے جانیں گے کہ اصل میں وہ پروگرام ہے کیا، اور اس کے علاوہ امیگریشن میں گورنمنٹ کیا کیا تبدیلیوں کے بارے میں، کن کن تبدیلیوں کے بارے میں جو ہے وہ سوچ رہی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بالکل رائے صاحب، آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ برطانیہ ہے وہ جو اکنامک مائیگرنٹ ہیں، جس کو آپ ہائیلی اسکل مائیگرنٹ جن کو کہا جاتا ہے، ان کے لیے کافی چینجز کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو پلان گورنمنٹ کا ہے، یہ ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ آسٹریلین بیسڈ پوائنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں، آسٹریلین ماڈل کو انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں جو پوائنٹ بیسڈ ہے۔ اچھا، ابھی ہمارے پاس جو بے شمار لوگوں کو پتہ ہے کہ یو کے پاس آلریڈی پوائنٹ بیسڈ سسٹم موجود ہے، اور جو یہ سسٹم جو یو کے کا جو کرنٹ سسٹم ہے وہ آسٹریلین سے اس طرح سے ڈفرینٹ ہے کہ جو کرنٹ سسٹم یو کے کا ہے یہ امپلائر زیادہ اورینٹڈ ہے، کہ امپلائر اگر کسی کو امپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو امپلائی کر سکتا ہے کسی بندے کو، جس طریقے سے ٹیئر 1 یا ٹیئر 2 یا ٹیئر 5 پہ ویزے وہ میجورٹی امپلائر بیسڈ ہیں۔ لیکن جو آسٹریلین بیس جو پوائنٹ بیس سسٹم لے کے آ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے، وہ آپ کے ایکسپیرئنس، نالج، لینگویج اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور ہمارے لوگوں کے لیے بڑے کافی فائدہ ہے اس چیز میں۔ جب بریکسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی جو کہ 31 دسمبر 2020 کو ہونی ہے، تو اس وقت اگر کوئی بندہ کوئی اپلیکیشن کرے گا یو کے اندر، کوئی ہائیلی اسکل اگر کوئی جاب آتی ہے، تو ہم لوگ جو باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہوگا کہ ان کو ایکول ٹریٹ کیا جائے گا۔ اگر وہ وہاں سے اپلیکیشن کریں گے تو وہ ایزیلی جاب لے لیں گے۔ اب اگر کرنٹلی کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو سب سے پہلے یورپ والے لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی پرائرٹی ہے، وہ ایزیلی آ کے جاب ٹیک کر لیتے ہیں۔ تو کافی اچھا چانس ہے ہمارے لیے کہ اگر بریکسٹ ہوتی ہے، ہائیلی اسکل جو مائیگرنٹ جو پروگرام جو آسٹریلین بیس یہ لے کے آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں کافی فائدہ ہونے کے چانسز ہیں۔ جو لوگ اگر فلوئنٹ انگلش بول لیتے ہیں اور ان کے لیے ان کے پاس پراپر اگر آئلٹس وغیرہ کیے ہوئے ہیں تو وہ انگلش پہ زیادہ توجہ کریں۔ باقی ان کے پاس ایکسپیرینس اور ڈگری وغیرہ تو ہوں گی اور ان کے ایج کا فیکٹر تو کاؤنٹ ہوگا، لیکن انگلش کا ویری امپورٹنٹ ہے کہ انگلش کو امپروو کریں۔ بہت شکریہ رزاق صاحب۔ لیبر پارٹی سے دوسری بار منتخب ہونے والی ایم پی سیما ملہوترا نے کاروباری مرکز کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایشین نیاد برطانوی نوجوان برطانوی معیشت میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تفصیلات دیکھیے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ لیبر پارٹی سے دوسری بار منتخب ہونے والی ایم پی سیما ملہوترا نے ہونسلو میں کاروباری مرکز کا افتتاح کیا۔ افتتاحی تقریب میں کونسلر سمیہ چودھری سمیت لیبر پارٹی کے رہنما اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں تحریک انصاف برطانیہ کے جنرل سیکرٹری رومی ملک، کونسلر نائلا اور دیگر اہم شخصیات نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ میں بریگزٹ سے ہونے والے معاشی خلا کو پر کرنے کے لیے ایسے اقدامات بہت ضروری ہیں جن کی مدد سے ملازمتیں پیدا ہوں اور معاشی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالا جا سکے۔ Very nice to see all the communities involved. It's very, very important that we participate in local businesses, small businesses, and tell our community from which and we can help them for. Today's event was very, very good, and I think A2 bridging is going to help the community. For those people who are finding it hard to get a mortgage or a loan, the bridging loan will be really, really good for all those people who can't come up with the money. And I think it's a family-oriented business. It'll be good for our environment. This is a new idea, and when I've seen the way in which businesses together in Hounslow work to strengthen each other and to make sure that there is good advice and good information and good education. اس موقع پر سیما ملہوترا کا کہنا تھا کہ ایشین نوجوانوں کے برطانیہ کی اکانومی کے حوالے سے نمایاں کردار پر ان کو ہمیشہ خوشی ملتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خاص طور پر ہونسلو بارو میں ایسے کاروباری مراکز کا قیام یہاں کے باسیوں کے لیے ملازمتیں پیدا کرنے اور نئے معاشی راستے کھولنے کے مترادف ہے۔ غلام حسین اوان، 92 نیوز، UK۔ والسر میں مقامی فلاحی اسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کے مہمان خصوصی رکن برطانوی پارلیمنٹ راجہ محمد یاسین تھے۔ تقریب میں آزاد کشمیر کے ضلع میرپور سے تعلق رکھنے والوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے دل کھول کر احتیاط بھی دیے۔ عرفان احمد فراز کی یہ رپورٹ۔
वालसल में बंगड़ीला कम्युनिटी ने हॉस्पिटल को मजीद सहूलतों से आरास्ता करने के हवाले से फंड रेजिंग तकरीब का इनकाद किया। तकरीब के मेजबान राजा फजलुर रहमान थे। तकरीब में पीटर ब्रॉस से उम्मीद वेलफेयर ट्रस्ट के सदर काउंसलर मोहम्मद नदीम और चेयरमैन हाजी मेहरबान ने खसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि यह आज़ाद कश्मीर का वाहिद हॉस्पिटल है जो बरतानिया जैसी जदीद सहूलियात के मुताबिक है और शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ मिलकर काम कर रहा है। शुरा का कहना था कि यह हॉस्पिटल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब है और यहाँ भारत की दहशत गर्दी से जख्मी होने वालों को सबसे पहले तिबी सहूलियात फराहम की जाती हैं। इससे बंगड़ेला समेत करीबी इलाकों में रहने वाले अफराद का इलाज फ्री में किया जाता है और हजारों गरीब लोग इससे इस्तेफादा करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरा का कहना था कि अपने मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर की तरक्की के लिए मिलकर किरदार अदा करना चाहिए। ओवरसीज में बसने वालों ने हमेशा पाकिस्तान और कश्मीर की तरक्की के लिए काम किया है। वो अपने इलाके की तामीर और तरक्की में भी मुस्बत किरदार अदा करते रहते हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो यहाँ के नौजवान हैं वो किसी भी शोबे में माहिर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के लिए राग़िब किया जाए, उनको बताया जाए कि उनके रूट्स वहाँ से हैं और वहाँ जाकर वो अस्पताल में जो भी उनकी खिदमत हो सके, जो हमारे यहाँ यंग डॉक्टर्स हैं या और भी स्पेशलिस्ट हैं, हम उनको लेके जा रहे हैं वहाँ पर। अब पाकिस्तान को स्किल्स की ज़रूरत है कि जो हमने यहाँ पर जिस तरह के भी स्किल्स जो हैं वो सीखे हैं उनको पाकिस्तान के अंदर मुंतकिल किया जाए, तब भी जाकर बात बनेगी। हमारे लिए ये फर्ज है कि हम वेलफेयर का काम करें। अल्लाह ने हमें दिया है तो उसके लिए दें। मैं समझता हूँ कि दुखी इंसानियत की खिदमत करना ये सबसे अहम इबादत है और इसी जज्बे से मैंने ये काम शुरू किया था जो आज से 12-13 साल पहले। हमने पहले भी इस तरह के कामों में बाकायदा हिस्सा लिया है। जहाँ भी कोई डिजास्टर होता है, इस तरह के मामलात होते हैं, यहाँ की कम्युनिटी बढ़कर सैलाब हो, ज़लज़ला हो, इससे पहले भी हमने किए और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। तमाम जमातों के, तमाम बरादरी के, तमाम इलाकाई सतह पर हम कश्मीर की आज़ादी के लिए भी और ये अस्पतालों के लिए जो ये दोस्त फंड इकट्ठा कर रहे हैं मेरे भाई, यहाँ वहाँ पर जो अस्पताल बना रहे हैं बंगड़ीला के मकाम पर, ये बड़ी नेमत है हमारे गरीब लोगों के लिए। शुरा ने हॉस्पिटल के सीईओ काउंसलर राजा नदीम की नेक काविशों को सराहते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया और उम्मीद जाहिर की कि वो आइंदा भी इंसानियत की फलाह बहबूद और हॉस्पिटल की तामीर और तरक्की के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे। इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, वालसल। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स पाकिस्तान सोसाइटीज़ की जानिब से कवाली की महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ कव्वाल हाजी अमीर खान अपने फन का जादू जगाया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन और लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स पाकिस्तान सोसाइटीज़ के ज़ेर एहतमाम कवाली की महफिल सजाई गई, जिसमें पाकिस्तानी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तुलबा और तालबात की कसीर तादाद शरीक हुई। अल्लाहू अल्लाहू और ताजदार हरम और अली दमलंग जैसे सूफियाना कलामों ने महफिल समा में समा बांध दिया। नाइट में मारूफ पाकिस्तानी कवाल हाजी अमीर खान ने हम नवाओं के साथ अपनी आवाज का जादू जगाया तो तुलबा और तालबात दीवानावार झूमते रहे और सूफियाना कलाम से अपने दिलों को तस्कीन पहुँचाते रहे। बरतानिया में पाकिस्तानी तुलबा कवाली की महफिल का एहतमाम करके न सिर्फ सूफीज़म को फ़रोग़ देते हैं बल्कि दुनिया भर से आए तुलबा को पाकिस्तानी सकाफत के रंगों से भी मुतारिफ कराते हैं। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। आयरलैंड में 8 फरवरी को होने वाले जनरल इलेक्शन में जीत के लिए छोटी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारान के साथ साथ दोनों बड़ी जमातें पूरे जोर शोर के साथ इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म के लिए उम्मीदवार फैना फॉल के सरबराह का डबलिन में 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहना था कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्जा से गुफ्तगू करते हुए मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। Yes, right now we're here with the head of Fianna Fáil party, Micheál Martin, expected Taoiseach of Ireland. There's a list of expectations and things that the politicians are promising, but it is expected that Micheál Martin will fulfill all these things, or minimum 80% of these promises. We'll ask him what is in his pocket for immigrants community. Micheál Martin, welcome to 92 News. Is there anything particular that is in your pocket for immigrants community? Well, I think broadly speaking, which affects all communities and particularly the immigrant communities, the whole housing situation, the high cost of rents in Dublin and across the country, and we want to get those rent prices down and we want to build more housing so as we can accommodate more people. And that means more council houses, but also more affordable housing, and we're bringing in a number of schemes to help people to save, for example. We'll
give a contribution to help them to save for a deposit for a house so that they can own their own home. We'll give a tax credit in relation to people who are renting. So Martin, there are hundreds of thousands of Indians and Pakistanis. They are expecting this from you. Some people who are married here in this country, for example, have issues, and I think that's not fair, and that needs to be sorted. Thank you so much, Martin. Thank you. Best of luck. Thank you indeed. Thank you. So you can see Martin, he was talking about his policies and also about immigrants, that he will sort out their issues, especially with the delays of visas and family joining applications as well. آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں برفباری کے باعث رابطہ سڑکیں بند ہونے سے شہری شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ وادی لیپا، گریس اور نیلم ویلی کے شہرات 23 روز سے بند ہے، جہاں نظام زندگی معطل ہو کر رہ چکا ہے۔ تفصیلات مظفر آباد سے سرفراز میر کی اس رپورٹ میں۔ جنت نظیر وادی کشمیر، لیپا، بلائی نیلم وادی اور گریس ویلی کی شاہراہیں 23 روز سے بند، متاثرہ علاقوں کے شہری زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم۔ 23 دن ہو گئے بھائی، ہماری روڈیں بند ہیں، تو ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دکانوں پہ جو سودا صرف تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، مریض ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں بیمار ہیں، ہم انہیں اسپتال تک لے کے نہیں جا سکتے، گاڑیوں کا راستہ بند، ہم بڑی مشقت میں یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ وادی لیپا کی رابطہ سڑکیں بند ہونے کے باعث دور دراز سے مریضوں کو کندھوں پر اٹھا کر اسپتال پہنچانا پڑتا ہے، جبکہ بازاروں میں اشیاء خورد و نوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ کوئی گاڑی کی سہولت نہیں، کوئی نہیں، لوگ پریشان کافی ہیں، تو اتنا عرصہ آیا 23 دن ہو گئے تو کوئی رستہ نہیں کھولا۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت وادی لیپا کے مسائل کے حل کے لیے رابطہ سڑکوں کو فی الفور بحال کرے۔ سرفراز میر، 92 نیوز، مظفر آباد۔ اس نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔